यस, हम डिस्कस कर रहे थे रॉकेट प्रोपल्शन। देखिए रॉकेट प्रोपल्शन पे हमने आपको बता दिया था रॉकेट रॉकेट प्रोपल्शन रॉकेट प्रोपल्शन टू कैरी आउट to carry the satellite from the surface of the earth to carry the satellite from the surface of the earth to a height h for their launch for the purpose of communications. Rocket is needed for that purpose, and rocket propulsion it works on law of conservation of linear momentum. हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस p is equal to mv. Law of conservation of linear momentum is constant. We can say m is inversely proportional to v when the rocket, जब रॉकेट को फायर किया जाता है तो उसका जो बर्निंग होती है फ्यूल की, मास ऑफ द फ्यूल इज बर्निंग, दैट मीन्स कंबस्शन इज टेक प्लेस। और जितना ज़्यादा मास का कंबस्शन होगा उतनी एग्जॉस्ट गैसेज बाहर आएगी, और जितनी गैसेज बाहर आएगी उसी स्पीड से गैसेज एयर को प्रेस करेगी और रॉकेट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे रॉकेट प्रोपल्शन प्रॉब्लम में। हम सबसे पहले आपको वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एन इंस्टेंट निकालेंगे, और उसके बाद नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे कि रॉकेट पे नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना अप्लाई होगा, और उसके बाद हम आपके को फाइंड आउट करेंगे एक्सेलेरेशन, फोर्स, एक्सेलेरेशन ऑफ थ्रस्ट। ये सब हम रॉकेट पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है, हमने आपको बताया था कि रॉकेट में सबसे पहले देयर आर थ्री कंडीशन वी कैन टेक। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट दिस इज द रॉकेट, नाउ दिस इज द इनिशियल कंडीशंस, t is equal to, now here t is equal to 0, at t is equal to 0 we can take कि m is equal to m naught. m naught means here मास ऑफ फ्यूल प्लस मास ऑफ रॉकेट, यानी टोटल जो रॉकेट का जो चेंबर है, मास ऑफ फ्यूल प्लस मास ऑफ रॉकेट, एंड हियर वेलोसिटी वी कैन टेकन v नॉट, और t इज इक्वल टू 0 पे v नॉट को हम 0 लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। दिस इज द फर्स्ट कंडीशंस, एंड इन दिस कंडीशन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द रॉकेट दैट विल बी व्हाट। अब यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है वो मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी यदि 0 है तो m नॉट इनटू में 0, initial momentum of the rocket is 0 before firing, and after firing that will be what, jab when the rocket is fired means when the rocket is goes vertically upward directions, and after t is equal to t, this is the condition, is the first condition when t is equal to 0, and this one is the second condition हम मानते हैं कि रॉकेट आपका ऊपर जा रहा है और रॉकेट का m is equal to mass of the rocket. Now here t is equal to t after some time and v is equal to v. This is the at time t is equal to t. This is the second condition. This is the first condition. Initially rocket is rest. यहाँ पे first condition में initially rocket is rest. Second condition में rocket is moves forward. Just burning its star, and we can say now here the momentum p2 is equal to mass into the velocity. ये mass. This is the second conditions. When t is equal to t, this is the linear momentum of the rocket. P1 is the initially linear momentum of the rocket is 0. And our third conditions, according to third condition, that means now here after t is equal to t plus dt, after time interval is increases, जो time interval increase होगा, mass of the जो rocket होगा, अब now here m minus dm, जो mass है वो dm is the mass of the gases, mass of the fuel which is burned, और जितना mass of the fuel burned होगा कि उसी एवरेज में उतने mass of the gases होगा। Now here t is equal to t plus dt, and this time interval we can say here m naught is the initial mass of the rocket when there is no firing, m is the mass of the rocket after at an instant t, कुछ समय के बाद t plus dt, now the time interval is increases, तो m minus dm. Now here dm is representing the small mass of the fuel which is combusted, which is burned, जिसको burning हो चुका है, जो mass fuel of mass inside the rocket that is burning, that mass is known to be mass of the gases. जितना ईंधन जलेगा, जितना फ्यूल कंबस्टेड होगा, वो अमाउंट में जितना फ्यूल कंबस्टेड होगा वो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द आपके पास आ जाएगा गैस। ओके,
अब जितना मास आपका बर्निंग होगा, जितना मास बर्निंग होगा, जितना कंबस्शन होगा, दहन होगा, जलेगा, उतनी वेलोसिटी उसी एवरेज में वेलोसिटी हो जाएगी v plus dv. नाउ हियर द मोमेंटम दैट, नाउ हियर द मोमेंटम इज व्हाट, नाउ मोमेंटम मास m minus dm, ये मास एंड वेलोसिटी v plus dv. बट यहाँ पे जो मास जलेगा, गैसेस इज इजेक्टेड डाउनवर्ड, तो यहाँ पे एक मोमेंटम और होगा प्लस dm. dm इज द मास ऑफ द गैस, और vg, vg इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस, जो मास कंबस्शन होने के बाद जो गैस बाहर निकल रही है, एग्जॉस्ट गैसेस vg. और यहाँ पे हम एक साइन माइनस लगा देते हैं, इसलिए लगा देते हैं क्योंकि रॉकेट के रेस्पेक्ट में रॉकेट गोइंग्स टू अपवर्ड्स एंड गैसेस गोइंग टू डाउनवर्ड्स, तो vg इसमें नेगेटिव साइन रिप्रेजेंटिंग हियर द नेगेटिव डायरेक्शंस ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस. तो नाउ देयर आर थ्री मोमेंटम. Law of conservation of linear momentum, P1 is equal to P2, that is equal to P3. Now P1 is what? Now here P1 is 0, implies PV. PV आपके पास है momentum of PV, that is mv, that is equal to P3. Now P3 is, now you are seeing that m minus dm, mass, velocity v plus dv, plus now here dm, mass of the gases, velocity of the gases. तो here apply the law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum में आपके पास सारे momentum conserved है, P1 is equal to P2 is equal to P3. Applying the law of conservation of linear momentum. So now when we apply this, now solve this problem, mv is equal to, now multiplies, see the calculations, if any mistake, जो भी आप ध्यान दीजिए कैलकुलेशन में, कोई मिस्टेक हो तो बता देना. mv माइनस दिस इज m, ये dv, माइनस दिस वन इज dm इंटू में v, और माइनस dm इंटू में dv, और प्लस ये आपके पास होगा माइनस vg और ये dm. नाउ प्रोडक्ट ऑफ वेरी टू स्मॉल टर्म दैट कैन बी नेग्लेक्टेड हियर, dm एंड dv. वेरी स्मॉल टर्म का प्रोडक्ट पूरी फिजिक्स के अंदर आपको नेग्लेक्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल टर्म का प्रोडक्ट दैट कैन बी नेग्लेक्टेड. dm इज द वेरी स्मॉल टर्म फॉर द mass of the gases, dv is the velocity, change in velocity. This is both term are very small that can be neglected, and we can say mv is equal to mv minus m dv. This can be neglected, और ये आप पे v dm we can write minus vg, और ये आपके पास dm, and mv से mv cancel, and this will be m dv. m dv is equal to minus, m dv is equal to, this one is minus v plus vg, और that is what, that is dm, that is dm. यानी कि ये आपके पास आ गया, कैलकुलेशन आपने किया, ये mv, m minus dm, v plus dv, v plus dm into vg. Now mv, solve these equations, minus dv minus v dm minus dm dv, that can be neglected, और यहाँ पे ये, this is the term. Okay, अब now here how we can write. अब यहाँ पे आपने, this is the equation, name given to the name of the equation first. This one is the first, v plus vg. Okay, now here if हम मानते हैं u is the relative velocity, relative velocity of burnt gases, relative velocity of the burnt gases with respect to rocket. If u is the relative velocity of the burnt, जो gases burnt gases with respect to rocket, we can write कि velocity of gases with respect to earth minus velocity of rocket, relative velocity of rocket, we can write velocity of the gases minus vg, vertically downwards, minus velocity of the rocket v, so that will be minus v plus vg. अब v plus vg को we can write, that is the relative velocity. तो ये आपके पास relative velocity आ गया, and now here minus v plus vg को we can write m dv
Now here u relative velocity dm. Now dv we can write u dm by m. Now expression for instantaneous velocity of the rocket. Initially you can say, this is the most important point, dv that is equal to u dm by m. Initially we can say when m is equal to m naught, initial mass of the rocket, then velocity of the rocket is v naught. Yeah, v naught is equal to 0 we can put, but initially we can say m is equal to m naught. We have assumed v is equal to v naught. Initial velocity of the rocket हम इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे बाद में, और m is equal to m after some time, m is equal to m and v is equal to v. Now dv, integration of dv का इंटीग्रेशन होगा v, this one is v naught, this in v u dm का इंटीग्रेशन. Anybody who can tell the velocity of dm का इंटीग्रेशंस, dm by m, anybody? dm by m का इंटीग्रेशंस आपको जनरल फॉर्मूला मैंने बता रखा है, इंटीग्रेशन 1 by x dx log of x. ओके, ये जनरल फॉर्मूला है 1 by x. हाँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, log of e m, ये m नॉट, ये m, ये आपके पास 1 by m dm बन गया, और 1 by m dm का जो इंटीग्रेशन होगा 1 by m dm, तो दिस वन इज व्हाट, नाउ 1 by m dm. यहाँ पे जो आपके पास 1 by dm का इंटीग्रेशन, दिस वन इज व्हाट, ये आपके पास बन जाएगा 1 by m dm का log n. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. नाउ यू कैन यूज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. हियर दिस स्टेप इज v minus v naught. यहाँ पे u अपर u, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बर्न गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट. नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log of m. Now log of m minus log of m naught we can write. It's okay, and we can use, now here we can use, अब यहाँ पे बन जाएगा v minus v naught, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा u, यहाँ पे log of m by m naught, और this is equal to now, and this will be minus u log of m naught minus m, क्योंकि रेस्ट मास ऑफ द रॉकेट, ये मास ऑफ द रॉकेट ज्यादा होता है, तो u दिस, तो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला v प्लस, नाउ हियर v दिस, नाउ हियर वी कैन राइट v नॉट, ये आपके पास होगा माइनस u. हाँ बोलिए क्या सर, वीडियो पॉज हो गई आपकी. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ यस. अब यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे आपके पास u, ये सुनिए ध्यान से, अब आपके पास जो एक्सप्रेशन आया, ये यहाँ पे आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपने यूज किया, यहाँ पे बन गया u दिस वन इज, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू v नॉट, और यहाँ पे बन गया माइनस u log of m नॉट बाई m. इट्स ओके. अब यहाँ पर जो ये है u का मतलब है, ये आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, u हियर रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव डायरेक्शंस. एक बार इसके एक्सप्रेशन में दिस वन इज व्हाट, तो v इज इक्वल टू v नॉट, हियर यू हैव टू राइट u इज रिप्रेजेंटिंग द, कि एजॉर्ज गैसेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ओनली डायरेक्शन के लिए है, यहीं पे हमने लगाना था अपोजिट डायरेक्शंस, तो दैट इज u log of m नॉट बाई m. दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला. और यहाँ पे हम ले सकते हैं दिस वन इज व्हाट, यहाँ पे इस फॉर्मूले की जगह हमने u लिखना पड़ेगा, दिस वन इज u. एक मिनट, ये फॉर्मूला मैं फिर आपको बताना चाहूंगा.
कि कैसे आया था, कि ये ध्यान से सुनिए, ये आपके पास था u, u है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बर्न गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो वेलोसिटी ऑफ द बर्न गैसेस माइनस v, यहां से आपने कॉमन ले लिया माइनस, दिस इज vg प्लस ये v, दिस इज व्हाट, ये आपके पास vg प्लस v, vg प्लस v किसके इक्वलेंट होगा, vg प्लस v, और माइनस vg प्लस v, यहाँ पे भी आपके पास माइनस था, तो ये आपके पास यहाँ पे यूज हो गया कि mv dv और माइनस v प्लस vg की वेलोसिटी ऑफ द बर्न गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये था vg मींस with respect to velocity of the burnt gases with respect to earth, और v means velocity of the rocket with respect to earth, और इसको v plus vg को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, नाउ हियर ये आपके पास नेगेटिव साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन का फिर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे जो यहाँ लिखना पड़ेगा कि नेगेटिव साइन का मतलब ये रिलेटिव जो वेलोसिटी है ये आपके पास डाउनवर्ड्स है, तो हियर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा, यही लिखना पड़ेगा, तो u, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये नेगेटिव साइन तो एक्सप्रेशन में आ रहा है, यहाँ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी उसकी डाउनवर्ड्स है, तो यहाँ पे आपने लिखना पड़ेगा u dm, ओके। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, वो मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ डायरेक्शन यहाँ शो करोगे आप, तो u dv माइनस u बाई m, और यहाँ पे ये dm, अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि m इज इक्वल टू m नॉट, क्योंकि डायरेक्शंस तो यहाँ पे है कि एग्जॉस्ट गैसेस की डायरेक्शंस, ये नेगेटिव साइन ओनली डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शंस उसकी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट अपोजिट है, तो नेगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली, तो यहाँ पे हम नहीं ले सकते, यहाँ पे ओनली डायरेक्शंस, तो हम v प्लस vg की वैल्यू लेंगे u, क्योंकि ओनली डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग हियर, तो v इज इक्वल टू v नॉट, m इज इक्वल टू m नॉट, m इज इक्वल टू m, यहाँ पे v इज इक्वल टू v, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे आपके पास v बन जाएगा, ये आपके पास v नॉट, ये v, ये माइनस u, और यहाँ पे dm बाई dt, अब dm बाई dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपने बताया था log ऑफ m, यहाँ पे ये आपके पास m नॉट हो गया, ये m, तो माइनस u log ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप इसको सोल्व करेंगे, माइनस अंदर चला जाएगा, u log ऑफ m naught minus log of n, and we can write now here upper limit minus lower limit, आप जो ये स्टेप आएगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शंस हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते थे, वो साइन यहीं पे इसमें ही आएगा इस एक्सप्रेशन में, now here upper limit minus lower limit v minus v naught, now here minus log of u upper limit, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया आपके पास u, और दैट इज व्हाट log ऑफ m नॉट माइनस m, और v इज इक्वल टू v नॉट प्लस u log ऑफ m नॉट बाई m, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, अब नाउ हियर v नॉट एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 का हमने वेलोसिटी v नॉट को 0 मान रखा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस नाउ log ऑफ e m नॉट बाई m, और इसी पे हम अभी एक दो न्यूमेरिकल्स आपको समझाएंगे भी, ये आपके पास है वेलोसिटी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का ये जनरल फार्मूला है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, इनिशियली रेस्ट v नॉट इज 0, और ये अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी फायर्ड, जब प्रोजेक्टाइल फायर्ड होगा तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस डाउनवर्ड्स, दैट इज log of ratio of m naught by n, m naught now here stand for mass of the rocket plus mass of the fuel, point to be noted, m is the mass of the rocket when burning is start, so now here we have to determine the up thrust, now up thrust means कि आप उस पे कितना फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, up thrust, how we can determine the up thrust, for the up thrust we can use the equations, हम ये इक्वेशन यूज करेंगे आप थ्रस्ट के लिए, कौन सी इक्वेशन आप थ्रस्ट के लिए, अब यहाँ पे m dv माइनस v प्लस vg, और ये आपके पास dn, तो m dv यहाँ पे v प्लस vg माइनस u dn डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dt, ये आपके पास dt हो गया, m dv बाय dt आपके पास हो गया a माइनस u dm बाय dt, नाउ हियर द स्पेशल टर्म dm बाय dt,
dm by dt that represent rate of combustion. rate of combustion का मतलब होता है rate of burning of fuel पर सेकंड के हिसाब से कितना फ्यूल बर्न हो रहा है. dm by dt मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म. dm by dt means rate of burning या rate of combustion take place. Now here ma, this one is the upthrust. Now upthrust is minus dm by dt. This is the upthrust जो रॉकेट को ऊपर ले जा रहा है, जिस फोर्स के कारण वो ऊपर जा रहा है, that is the upthrust. That force is known to be upthrust. तो मैंने टू फॉर्मूले, एक तो आपके पास upthrust आ गया और एक आपको प्रूव कर दिया वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस log ऑफ e m नॉट बाई m. ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है. एक आपके पास upthrust है. अब आता है नेट रिजल्टेंट फोर्स. उसमें नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? नेट रिजल्टेंट फोर्स. नेट रिजल्टेंट फोर्स के लिए आप कैसे लगाएंगे नेट रिजल्टेंट फोर्स? हाउ टू डिटरमाइन द नेट रिजल्टेंट फोर्स? अब आपका रॉकेट है बेटा, देखिए ये रॉकेट है, ऊपर जा रहा है, ये आप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, दिस इज द थ्रस्ट फोर्स. और वेट ऑफ द रॉकेट दैट इज डाउनवर्ड्स, ये अपवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स. तो नेट जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा जब ऊपर जा रहा है तो बट नेचुरल थ्रस्ट फोर्स ज्यादा है, तो F माइनस mg ये आपके पास लगेगा अप थ्रस्ट फोर्स. तो हाउ वी कैन डिटरमाइन द अप थ्रस्ट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स दैट इज एजेक्टेड ऑन द रॉकेट. अब F इज द अप थ्रस्ट फोर्स. अब आपके पास जो अप थ्रस्ट फोर्स है वो आपके पास है अप थ्रस्ट फोर्स. यू आर सीइंग दैट कि अप थ्रस्ट फोर्स आपके पास ये है, ये आपके पास होगा माइनस ये आपके dm by dt. और हियर आल्सो नेगेटिव साइन पर जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालेंगे तो नेगेटिव साइन वही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वी कैन टेक हियर पॉजिटिव माइनस ये आपके पास mg, ये आपके पास अप थ्रस्ट दैट इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स. ये आपके पास वेट डाउनवर्ड्स लग रहा है, अप थ्रस्ट ऊपर, नेट रिजल्टेंट फोर्स दैट एजेक्टेड ऑन द रॉकेट. नाउ हाउ वी कैन डिटरमाइन ना एक्सेलरेशन नाउ दैट केस. अब इस केस के अंदर आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इसमें कई न्यूमेरिकल आती है कि डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट. आप एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट के लिए सबसे पहले आप रिजल्टेंट फोर्स आ गया, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स. कि रिजल्टेंट फोर्स u dm by dt पॉइंट ऑफ इनोटेड एग्जॉस्ट गैसेस है, जिस वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस u dm by dt रेट ऑफ कंबस्शन, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ द गैसेस माइनस mg. ये आपके पास अप थ्रस्ट है, ऊपर ले जा रहा है, ये वेट डाउनवर्ड्स है, नेट फोर्स. तो नेट फोर्स नाउ इफ m is the mass of the rocket है after t is equal to t and ma is the acceleration after some time. Now acceleration that is equal to u dm by dt minus यहाँ पे mg. बेटा एक्सेलरेशन निकालना है तो u dm by dt, यहाँ पे आपके पास m आ गया, यहाँ पे आपके पास g हो गया. अब ये आपके पास मास है, ये कौन सा मास है? अब कई बार न्यूमेरिकल में आएगा आफ्टर t सेकंड के लिए एक्सेलरेशन पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? ये मास m नॉट में से dm by dt है रेट ऑफ कंबस्शन पर सेकंड कि मास ऑफ द फ्यूल बर्निंग पर सेकंड. और न्यूमेरिकल में ये आएगा कि 2 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वी कैन से dm by dt रेट ऑफ कंबस्शन पर सेकंड इनटू में t मे बी 2 सेकंड, मे बी 3 सेकंड, मे बी 4 सेकंड. यानी कई बार आपके पास आएगा भाई रॉकेट का मास ये है और रेट ऑफ कंबस्शन इस हिसाब से बर्निंग हो रही है, तो 2 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा? तो m नॉट इज द इनिशियल मास में से ये dm by dt रेट ऑफ कंबस्शन है, पर सेकंड के हिसाब से इतनी बर्निंग हो रही है, तो 2 सेकंड के बाद बर्निंग क्या होगी? दैट इज द m. तो नाउ हियर वी कैन से कि u, दिस वन इज द u dm by dt. अब इस मास की जगह आप क्या लिखेंगे? अब नाउ यू कैन राइट m is equal to what? m naught initial mass of the rocket dm by dt कि 1 सेकंड के हिसाब से बर्निंग, सारा रॉकेट का मास सारा एकदम बर्निंग थोड़ी हो जाएगा, टोटल मास में से धीरे धीरे मास बर्निंग होता है. भाई 2 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा? तो m naught is the initial mass of the rocket, तो इनटू में t माने 2 सेकंड है तो dm by dt गिवन होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m naught में से वो हो जाएगा आपके पास, ये m आ जाएगा, दिस m. और इनटू में क्या बन गया? ये dm by dt और माइनस g. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. ये फॉर्मूला आपके लिए एक्सेलरेशन के लिए है, बट रॉकेट के केस में पॉइंट टू बी नोटेड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोस्टली ये आएगा
कि इफेक्ट नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यदि नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आता है तो यहाँ पे आप g को नेगलेक्ट करेंगे। इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेगलेक्टेड देन a इज इक्वल टू व्हाट, u, ये आपके पास u, यहाँ पे माइनस m, ये dm by dt रेट ऑफ कंबस्टन मींस रेट dm by dt की क्या आ गया, dm by dt इज इक्वल टू व्हाट, किलोग्राम पर सेकंड, कि पर सेकंड के हिसाब से कितनी बर्निंग हो रही है, ये टोटल मास है, पर सेकंड के हिसाब से इतनी बर्निंग हो रही है। t इज द टाइम कि इतने सेकंड के बाद कितना रॉकेट में कितना मास बचा, तो m नॉट माइनस dm by dt इनटू t, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस m को वी कैन राइट इन दिस, और ये आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा ये dm by dt दिस इज द मोस्ट इनटू में ये t और मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे dm by dt इनटू में t, और यहाँ पे आ जाएगा dm by dt। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखिए रॉकेट पे आपको 101%, देखिए 1% भी फालतू बोल रहा हूं कि रॉकेट पे जरूर आएगा। आपकी वीडियो भी बन रही है, एक तो मैंने बना चुका हूं, आज आपको वीडियो ही मैंने अपलोड करनी थी, पर चलो बच्चों की भावनाएं को देखते हुए जब बोल रहे तो बात मान भी लेनी चाहिए, तुम हमारे बच्चे हो, अदरवाइज तो तुम्हें पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं होता था, क्योंकि लाइव क्लासेज में ये इंसल्ट होता है, 10-10 12-12 बच्चे ज्वाइन करना ये अच्छी बात नहीं होती है। जिस टीचर की क्लास में सारी क्लास प्रेजेंट होती है +2 के, और तुम्हारी क्लास बहुत कम रहती है, फिर भी चलो कि नहीं, वीडियो स्टार्ट कर दी थी, आज से वीडियो बन भी चुकी है, दोनों वीडियो अपलोड हो जाएगी। ओके, अब नाउ हियर सुनना ध्यान से, पहला आपको मैंने पढ़ाया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v नॉट प्लस u log ऑफ m नॉट m, हर बच्चे को पता होना चाहिए ये वेलोसिटी ऑफ द, जब रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है तो फायरिंग हो जाती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v नॉट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, इनिशियली रेस्ट 0, u इज द वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस, की जो वेलोसिटी है वो एग्जॉस्ट गैसेस, वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस, और नाउ हियर u बता दिया log ऑफ m नॉट बाय m, m नॉट है मास ऑफ द रॉकेट, मास ऑफ द रॉकेट मींस मास ऑफ द रॉकेट प्लस मास ऑफ द फ्यूल। ओके, m है मास, ये जो मास ऑफ द रॉकेट है जब आपकी बर्निंग स्टार्ट हो गई है, और इस मास को हम ये ले सकते हैं न्यूमेरिकल में m नॉट माइनस dm by dt into t, आफ्टर सम टाइम दिस मास में बी रिटन एज, क्योंकि ये वो मास है जो टोटल मास में से बर्निंग, जो रेट ऑफ बर्निंग पर सेकंड हो रही है। ओके, टी इज मींस वो टाइम कि कितने सेकंड के बाद वो आपकी बर्निंग हो रही है। ओके, तो यहां पर ये m का मतलब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि रेस्ट जो टोटल मास में से dm by dt मींस रेट ऑफ बर्निंग है, रेट ऑफ कंबस्टन है, पर सेकंड के हिसाब से कितना मास बाहर निकल रहा है, जल रहा है, गैस बन रही है, और कितने टाइम के लिए। ओके, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। उसके बाद मैंने बेटा आपको आप थ्रस्ट बताया, आप थ्रस्ट का जो फार्मूला होता है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में होता है, नेगेटिव साइन मत लगाना, u dm by dt, वैसे तो हमने नेगेटिव है बट ये अपोजिट डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला बताया है u, यहाँ पे dm by dt, और यहाँ पे m नॉट माइनस dm by dt इनटू में t, और ये माइनस जो था ये g, इट्स ओके। यदि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेगलेक्ट है तो g की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, अदरवाइज देयर आर द मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द थ्रस्ट, दिस इज द एक्सेलरेशन। इसके अलावा रॉकेट प्रोपल्शन में कोई फार्मूला नहीं लगेगा, और जितने भी प्रॉब्लम है सारी की सारी एकदम सोल्व हो जाएगी। अब एक न्यूमेरिकल, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पेपर में आ गया ए रॉकेट ऑफ मास 66,000 kg, ये रॉकेट का मास है, ए मास ऑफ द रॉकेट इज 6,000 kg, तो दैट मींस व्हाट, m नॉट हो गया 6,000 kg। इट इजेक्टेड ना, इट इजेक्ट द मास एट ए रेट, एट ए कांस्टेंट रेट से मास का इजेक्शन हो रहा है, बर्न या रेट ऑफ कंबस्टन इज टेक प्लेस। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ कंबस्टन होगा वो कैसे होगा, रेट ऑफ कंबस्टन इज टेक प्लेस, रेट ऑफ कंबस्टन इज टेक प्लेस, तो रेट ऑफ कंबस्टन कैसे होगा,
रेट ऑफ कंबस्टन इज टेक प्लेस। तो रेट ऑफ कंबस्टन में dm/dt, रेट ऑफ कंबस्टन जो दे रखा है वो आपके पास रहेगा 16 किलोग्राम पर सेकेंड। ओके, कि भाई इस रेट से कंबस्टन हो रहा है, रेट ऑफ कंबस्टन इज दिस। जो उसके बाद में था विद ए कांस्टेंट स्पीड, और स्पीड आपके पास कोई भी देखी है विद ए कांस्टेंट स्पीड 1000 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट आफ्टर 1 मिनट, व्हाट विल द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट आफ्टर 1 मिनट। तो आफ्टर 1 मिनट मींस आफ्टर 1 मिनट उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो 1 मिनट मींस 60 सेकंड। अब आपके पास एवरीथिंग इज गिवन, आपने एक्सेलरेशन निकालना है, u आपके पास है 6000, दिस वन इज 6000, dm/dt यू हैव गिवन 16 किलोग्राम, ये आपके पास 16 किलोग्राम हो गया, इनटू में ये 16 हो गया, 16 किलोग्राम पर सेकंड डिवाइडेड बाई, और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेगलेक्ट है m नोट मान में आपके पास 6000 है, फिर u dm/dt, यहाँ पे u आपके पास है, u आपके पास 1000, दिस इज द 1000 इनटू में dm/dt m नोट 6000 और माइनस यहाँ पे dm/dt, अगेन dm/dt 16 किलोग्राम पर सेकंड, और आपके पास क्या है, व्हाट इज दिस टाइम 1 मिनट है, तो 1 मिनट से आप सेकंड बना दो, तो ये आपके पास हो गया ये 60, एवरीथिंग इज गिवन एंड यू कैन डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। u इज गिवन, पुट द वैल्यू ऑफ u, dm/dt इज गिवन, रेट ऑफ कंबस्टन इज टेक प्लेस 16 किलोग्राम पर सेकंड, m नॉट इज गिवन 6000 एंड dm/dt अगेन 16 किलोग्राम पर सेकंड इनटू में व्हाट, ये आपके पास 1 मिनट है तो 60 सेकंड, we can determine the acceleration same as we can determine the up thrust, if the question can be determine the up thrust, तो आप thrust के लिए आप ये फार्मूला लगा देंगे, आप thrust के लिए ये फार्मूला लगा देंगे। और यदि सुनिए आपसे ये पूछा जाए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो मान लीजिए 0 है, उसकी वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट पूछा जाए तो हाउ कैन यू सॉल्व, तो v is equal to what, u log of m naught minus n। if आप you are confused कि सर u कहाँ है, लो भाई ये रहा u, सर m नॉट ये रहा m नॉट, m को आपने कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि m आपके पास क्या है, m है रेस्ट मास में से, m नॉट में से dm/dt, टोटल मास में से dm/dt मींस पर सेकंड के हिसाब से कितना मास कंबस्टन हो रहा है, बर्न हो रहा है, और ये आपके पास ई। ओके, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि रॉकेट प्रोपल्शन, आज मैंने रॉकेट प्रोपल्शन आपको पढ़ा दिया है कि रॉकेट प्रोपल्शन क्या है। रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर हम सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, लेटेस्ट हम जो सैटेलाइट जो हमारा है उसको लॉन्च करने के लिए हम रॉकेट प्रोपल्शन का यूज करते हैं कि सर्टेन हाइट, अर्थ से किसी भी सर्टेन हाइट पे लॉन्च करने के लिए फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज। जो आज हमारा मोबाइल, जो हमारा जूम, जो हम भी काम कर रहे हैं वो सब सैटेलाइट की देन है, वो सब हमारी रेडियो वेव्स की है। वो रेडियो वेव जाती है सैटेलाइट से, ट्रांसपोंडर से रिफ्लेक्ट होके आती है, उसकी रेंज बढ़ती है, फिर हमारे पास हमारा नेटवर्क काम करता है। तो ये सब रॉकेट प्रोपल्शन किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो ही हमारे पास रॉकेट ले जाता है, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है। इसके 3 कंडीशन मैंने बताई है। सबसे पहले इनिशियली रॉकेट एज रेस्ट, फिर 3 मोमेंटम आफ्टर t इज इक्वल टू t, फिर t इज इक्वल टू t प्लस dt, और तीनों कंडीशन के तहत मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। और आपने रॉकेट प्रोपल्शन पे 5 to 6 ही प्रॉब्लम है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, और आपने रॉकेट प्रोपल्शन पे प्रॉब्लम करनी है। अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने पढ़ा दिया, रॉकेट मैंने पढ़ा दिया, लिफ्ट प्रॉब्लम मैंने पढ़ा दी, न्यूटन्स के लॉज मैंने डिस्कस कर दिए, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम मैंने डिस्कस कर दिए। अब हमारे पास जो है एक दो और है, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्यूडो फोर्स, और उसके बाद फिर फ्रिक्शन, और तो बहुत बड़ी है ये। ओके, अभी से तो कहना बड़ा वो है। आप सुनिए, एक न्यूमेरिकल्स मैंने रॉकेट पे दे दी, एक और सुनिए। आप में बताइए, ये आपके पास बैलून है, देखिए कौन बच्चा इसको करेगा, दिस वन इज द बैलून। ध्यान से सुनना, ये बैलून है, इस बैलून का मास m है, और ये बैलून नीचे की तरफ
डिसेंडिंग कर रहा है, डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ए बैलून ऑफ मास एम इज डिसेंडिंग, वो डाउनवर्ड्स जा रहा है। क्योंकि मैंने उस दिन जो लिफ्ट प्रॉब्लम पढ़ाई थी, तो लिफ्ट प्रॉब्लम पढ़ा तो दी, बट उसमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं की। जब तक किसी भी प्रॉब्लम पे एक आधे न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं होती है तो वो समझ में कम आती है। तो ध्यान से सुनिए, एक बच्चे ने कहा भी था लिफ्ट प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। आप ये बैलून से समझा रहा हूँ, ये बैलून है, बैलून का मास m है, ये बैलून डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स, ये बैलून नीचे की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से a से, ओके। बैलून डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स, कहता है इस बैलून का कुछ पार्ट और मास रिमूव कर दे, कि यदि हम इसमें से इफ ए स्मॉल पार्ट, स्मॉल कंटेंट, कोई स्मॉल कंटेंट जिसका मास m, ए स्मॉल कंटेंट ऑफ मास स्मॉल m इज रिमूव्ड फ्रॉम द बैलून, उस बैलून से उस स्मॉल कंटेंट ऑफ मास को यदि हम रिमूव कर दें तो वो बैलून किस स्पीड से ऊपर जाएगा, यानी कि जब मास कांटेक्ट कर दें तो वो बैलून असेंडिंग डिसेंडिंग के बाद की बजाय वो असेंडिंग ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। जब तक आप मास और कांटेक्ट को रिमूव नहीं करते तो बैलून डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन, और जो ही इस बैलून में से एक स्मॉल कंटेंट, कोई छोटा सा कंटेंट या ये स्मॉल पीस ऑफ मास स्मॉल m को यदि हम रिमूव कर दें तो बैलून जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो डिटरमाइन द मास ऑफ द कंटेंट विच इज रिमूव्ड। हरी अप, जल्दी कीजिए कि आज आपकी जो मीटिंग है वो ओनली 40 मिनट्स की है बस, तो इसलिए प्लीज हरी अप। आज जो टाइम है ओनली 40 मिनट्स का है, तो कितनी जल्दी आप बताते हैं मीटिंग ऑफ होने से पहले पहले। नहीं हुआ? आप सुनिए, ये मान लीजिए इसमें कोई भी फोर्स लग रहा है F, इसका जो भी आप थ्रस्ट नीचे आ रहा है तो इस फोर्स से, तो mg इज ग्रेटर देन F, ये नीचे आ रहा है mg इज ग्रेटर देन F, mg माइनस F दैट इज इक्वल टू ma। इट्स ओके, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है। व्हेन द मास इज रिमूव, जब मास को रिमूव कर देंगे तो बैलून का ये मास m मास रिमूव कर दिया, तो यहाँ टोटल ऑफ जो m माइनस mg दैट इज डाउनवर्ड्स, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा सेम एक्सेलरेशन से। तो नाउ इन दिस केस F इज ग्रेटर देन m माइनस mg, ओके, और नेट फोर्स F m माइनस mg दैट इज इक्वल टू ma, m माइनस m इंटू में a। अब आपने वैल्यू निकालनी है, इट्स ओके। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम F की वैल्यू पुट कर दें, तो F की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे F इज इक्वल टू कैपिटल mg माइनस ma, ओके। यहाँ पे आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर दो mg माइनस ma, mg माइनस ma माइनस mg, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस mg, और यहाँ पे बन जाएगा ma माइनस स्मॉल ma। तो यहाँ पे mg से mg आपके पास कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आप a, इसमें से a लेना पड़ेगा, ये आपके पास mg हो गया, और यहाँ पे आने के बाद ये बन जाएगा 2ma, और यहाँ पे बन जाएगा 2ma माइनस ma। तो दैट विल बी व्हाट, a इज कॉमन, 2m माइनस m यानी कि 2m। आपने इसकी वैल्यू निकाली स्मॉल m की, तो m यहाँ पे बन जाएगा m कॉमन, g प्लस a, और दैट इज इक्वल टू mg, g प्लस a दैट इज इक्वल टू 2ma। इट्स ओके। तो m इज इक्वल टू 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस a, पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। टुडे we have discussed the problems of the regarding the balloon. It's right? Okay, thanks.